आखण तेरा नाम कर में मिलै, आखण तेरा नाम कर में मिलै, आखण तेरा नाम कर में मिलै, आखण तेरा नाम, आखण तेरा नाम। आखण तेरा नाम, आखण तेरा नाम, आखण तेरा नाम, आखण तेरा नाम। कर में मिलै, आखण तेरा नाम, जित लगे तरना होर नहीं था, कर में मिलै, आखण तेरा नाम, जित लगे तरना होर नहीं था, कर में मिलै। आसे ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੋ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਹਨੇਰਾ ਕੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੀ में ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੌਣ ਡਾਕੀਆ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਾਕੀਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜਾਗ ਖੋਲਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਭਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕੋ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊਟਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਵੇਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਲਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਦ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਦ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਹੈ 661, 662, 661 ਤੇ 662 ਪੰਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਪੰਨਾ? ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ, ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਭਪੂਤ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰਹਾਓ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਛੋਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜੀ ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਤੋਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਟੇਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜੀਭਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ 20 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀਭਾਂ ਦਰਬ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਓ, ਮਨ ਲਾਓ
ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੌੜਾ ਹੈ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਖ ਆਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ, ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ, ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਰਹਿਮਤ, ਮਿਹਰ, ਕਿਰਪਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਖਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ, ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ, ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ, ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ, ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ, ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਾਈਆਂ ਸੀ, 2 ਹੁਣ ਨਾਲ ਗਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਆਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੂ ਪਿੰਚਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਡੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਸੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਚੌਕਾ ਹੈ, ਤੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 3 ਹਿੰਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਡੰਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਸਟੈਨਜ਼ੇ, 4 ਸਟੈਨਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ। 4 ਇਹਦੇ ਪਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੌਪਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦਸਨ ਸਾਈਂ ਬਲਾਵਲ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ,
चौपते का मतलब 4 बंदा वाला शब्द है, ਉਹਦੇ अखीर ते 4 लिखे है, ਇਹਦਾ मतलब 4 ਦੇ ਵਿੱਚ और पहला इत्थों है 3 आया, 3 और 4 ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नियां लाइनां इकट्ठियां पढ़नियां चाहिदियां, इन्हां नूं तोड़ना नहीं चाहिदा, नहीं तो ਇਹਦਾ भाव अर्थ ਇਹਦਾ लिंक खत्म हो जाऊगा। बाबे उन्होंने ना तां हिंसे ਵਿੱਚ ਡੀਜਿਟ ਦਿੱਤੇ है भी ਜਿਹੜੇ ਡੀਜਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नियां लाइनां आउंदियां ਉਹ इकट्ठियां पढ़ो और उसे तरकीब ना पढ़ो तां ਉਹਦਾ मतलब खुलेगा। इस करके अखीर ते चौका है। तीया क्यों आ गया? तीया इसे चाल दा गुरु बाबे नानक दा शब्द दे पिछे आएगा जां अगे आएगा? पिछे आएगा। 3 शब्द इसे चाल दे जो असी गाया है, 3 शब्द दे पिछे इहदे नाल होणगे गुरु बाबे दे, तां तीया आया। पांजा क्यों आया? पांजा आया है भी जिथों ये राग चलदा धनासरी ओहदा 5वां शब्द है मल्ले पहले दा। की मजाल सी ये साडी बाणी दे विच रलावट हो सके, जां दुनिया भर दियां बाइबल कुरान शरीफ बाद च लिखे गए, मतलब हर एक चीज़ दे विच एडिशन आल्टरेशन हुई, पर आप ज्ञान बच गया साडी कर्मां नूं, और ऐसा ज्ञान जिहड़ा लेटेस्ट दुनिया ते आया और पंजाब दी धरती ते आया और गुरमुखी लिपि सानूं दिता महाराज। इहदियां एडियां वडियाइयां सिफतां कर नहीं सकदा। गुरु अर्जन पातशाह दी इन्नी मेहनत, उन्हां फिर हिंसे पात दे पिछे की मजाल कोई उदासी जां गुरु घर दा वैरी साडे ज्ञान दे विच कोई मिलावट कर सके नानक जोत दी बाणी तो इन्ने हिंसे पा के कई वारी 13 हिंसे चलणगे। तुसीं देखो गुरु अर्जन पातशाह रब ना मिले, जिन्हां नूं तत्तियां तवियां ते रोस्ट कर दिता गया, पर उहदी मेहनत देखो साडे सिख पुत्तां लई साडे लई एडा खजाना दिता, और असी इनू खंड पाठ करके ते कदी ज्ञान नहीं लेंदे भी इहदी कोई देख ते लिए भी कर की रहे। 12 हिंसे एडा गुरु ना मेहनत रब ना मिले होए जब बिरती दिंदे होने आ ते ओह इन्नी एडिटिंग कर सके। इधर रब ना मिली होए बंदा, गुरु नानक ने इन्ने शब्द दिते उन्हां दी ओह रब ना मिले नहीं। इसदा मतलब है कोई साडे जेड़ा तोड़ा तोड़ देना जी भी लोड़ नहीं, बस नाम जपो टंको के समाधि हो क्यों भाई, ओहदा गुरुआं ने इन्ना टाइम दिता काहदे लिए दिता? इस करके शब्द साढ़े तक पहुंचे। आप जड़े पिछले हिंसे आ घर जाके देखो पाठ करोगे एंड तुहाडे कोल है भी है इन्हें हिंसे का मतलब पिछला शब्द 3 होर आउणगे, 5वां शुरू तो आएगा। और नानका और महला उत्ते पहला बाबे ने नां नहीं लिखिया, इन्नी गरीबी, और महला अगला गुरु लिखदा सी, महला कोई लिख नहीं सकदा उत्ते भी मेरा शब्द है। उतो खाली थां छड्डदे सी, ये जिहड़े महल्ले पाए गुरु अंगद साहब ने पाए, जब पोथी उन्हें कराई गुरु अंगद साहब ने अपने थां खाली छड्ड के ते ओ गुरु अमरदास साहब ने पाए। गुरु पा नहीं सकदा महला उत्ते, क्योंकि हमें तो रहत है बाणी, उन्हां दी ईगो खत्म सी, उस सब कुछ और बिच मिले। इस करके महल्ले गुरु अगला गुरु लिखदा सी। इन्नी गरीबी इन्हां शब्दां च, और असीं फिर उत्ते उन्हां दा नां लैने आ, सान तान फलां सा, वो भाई थोड़ा जिहा विचार के सत्कार नाल लैंदी है सारी संगत, लेकिन जदों ये नां लाऊगी ना वो गुरुआं दी असीं होर वडियाई कर रहे हैं भी इन्नी गरीबी सी नहीं। इस करके पहले महले दा शब्द 4 लाइनां असीं पिछलियां गाइयां है, आओ एक बारी फिर 4 लाइनां पिछलियां गा लईए भी बड़ी किरपा दे नाल किते कर्मां दे नाल बड़ी मेहर दे नाल किते वडभागियां वाहो वाहो मूहों कढाए, किसी भागां वाले नाल रब दा नाम मूँह नूं जपण नूं मिलदा है, और इहदे बगैर होर कोई रास्ता नहीं है तरन दा। तरना है भव जल दा तरना की है, पैसा ते कोशन दा तरना की है, माया दा तरना। इस करके वो मैं जे कोई डुबे, जे कोई बहुत डुबा पिया और कालपुरख एडा दयाल है और ओहदी सार लएगा। और तारन वाला कई बारी गुनाहगारां नूं भी तारदा, सारियां नूं तारन वाला सर्ब दातार है, एडा वड्डा करैक्टर है कालपुरख दा। इस करके ओहदे अल सारा शब्द आउंदा। किसी नानक दा ध्यान नहीं रखना, किसी गुरु दा नहीं, किसी ना नानक साचा सर्ब दातार, नानक छाप है इत्थे, और नानक जोत दी बाणी है। महले पहला कहंदा भी जिहड़ा साध मेरा सर्ब दाता है वो सारियां नूं दाता करना है, वो सच्चा है ते सारियां नूं गुनाहगारां नूं भी सारियां नूं दातार करदा। ते जे कोई बंदा आण के जीवन च डुੱਬ जे, वो कई बारी उहनूं चांस दिंदा, बंदिया तेरा इहो ही जन्म है, जिस करके तू मेरे नाल मिल सकदा नहीं, तू विछड़िया पिया जन्मां दा, तैनूं मैं फिर चांस दिंदा, तैनूं मैं फिर चांस दिंदा। वो सार दिंदा, बार बार सानूं चांस दिंदा, लेकिन
कर्म नहीं ऐसे होंगे तो सानू नाम जपण नूं नहीं मिलता, रास्ते असीं डीरेल हो जाने किसी बन्ने होर। लेकिन बाबा ने जो लाइन कढ़ी है महले पहले ना, उहदे मुताबिक नाम दा मूँह नाल आख आख के जपना, उहदे बगैर तू तर नहीं सकदा। तो इत्थों लाइन अखीरले जिथे तोड़ा दिता वो शुरू कीती है, कर में मिला आखण तेरा नाम, जित लगे तरना हर नहीं, ध्यान दे नहीं है, जित लगे तरना होर नहीं था। हथ शब्द अदे दिता गलत नहीं पढ़ना, बड़ा भारा पद्धर है। हाथां च पूरी मोटे प्रिंट ना दिता, ना ही नहीं है, नहीं कहना है जो बाबे ने लिखिया। कर में मिला, मिले नहीं कहना, मिला दो लामा है, कर में मिला। कर्म मिला ही नहीं कहना, कर्म नहीं कहना, कर्म मम्मी नूं सियारी है, कर में मिला किते कर्मां दे नाल, कर में मिला आखण तेरा नाम। और आखन नहीं कहना, नन्ना नहीं है, नाना वह, कर में मिला आखण तेरा नाम। जित लग नहीं कहना, लगे कहना है, जित लगे तरना और नहीं था। कर में मिला शब्द तारस दिंदा, हौसला ना टा, लख गुणा कीते है, डुब भी गया आगली तुक फड़। जे को डूबे फिर ऐसा वो सार लेगा, बल्कि डुबदियां दी ज्यादा सार लेंदा। जेड़ा कहंदा नहीं मैं नहीं डुबिया, मैं कोई गुनाह नहीं कीता, मैनू वो गरीबी च नहीं जाएगा। महाराज कहंदा लाला जोर अपना। फिर वो कहता जेड़ा डुबिया ओनू हमेशा गुनाहगार तो गुनाहगार बंदा पहला तरदा है, क्योंकि ओदी हमें मर जाए कि मैं बहुत गरीब है। जे को डूबे फिर हो ऐसा, जे को डूबे फिरे हो ऐसा। क्यों नानक साचा, इत्थे भी ਇਹਦਾ नानक सच्चा नहीं है। नानक सच्चा धन गुरु नानक, नानक नहीं सच्चा। नानक ते गूठा रख लो। नानक ही है, छाप है। जिद्दां पोएम दे विच शायर लोग तखल्लस लाउंदे है, नानक जोत दी बाणी है, उत्ते गूठा रख लो। नानक नहीं सच्चा, साचा सर्वदतार है, काल परख ना जुड़दे, नानक दा नहीं शब्द जुड़दे। इस करके कई बारी नानक दे कक्के नूं औंकड़ होएगा, ओहदा मतलब है जिथे नानक दे कक्के नूं औंकड़ हो जाए, उत्ते महला देखो केड़ा, वो लिखारी वाला इशारा भी इस महला अपने आप लिए कह रहा है। कई बारी नानक ही होएगा, नानका होगा, पर नानक जिथे आ जाए ਉਹਦਾ मतलब कोई नहीं है। इदां शायर दे तखल्लुस का मतलब कोई नहीं हुंदा। वो पोएम दे विच फिट करन लई, वजन तोड़ रखण लई गीत है सारे। इस करके गीत सानू इन्ने गाउण नूं चीज़ दित्ती है गीत महाराज ना, तो इस करके इत्थे छाप रख के इहदी विचार है भी साचा सर्ब दतार है। जे कोई डूबे फिर नानक ना सार नहीं लैनी, ताडी साची सर्ब दतार ना लैनी, तां नानक दे उत्ते गूठा रखना पैना। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्ब दतार। सर्ब सारी ह्यूमैनिटी दे उत्ते, कोई कल्ले सिखां ते नहीं, सारे ग्लोबल दातार है, यूनीवर्सल दातार है। जिथे चल जाओ, जिथे मारा उन्हें तारना। इस करके वो सारियां दे उत्ते, पर बंदे नूं मैनकाइंड नूं तारेगा, पशु नूं नहीं तार सकदा, क्योंकि उस यूनी च कोई तर नहीं सकदा। आ मानस जन्म दी वडियाई है। तारूगा ते मानस जन्म दे के तारेगा, देवते नहीं तार सकदे, वो भी जून है। मुड़ के जन्म लैणगे देवते,
देवते एक फर्स्ट क्लास की टिकट है, उन्होंने कर्म चंगे किए, जदों टिकट मुक जाती भुआ के कलपुरख पेट के जन्म चनों ले। देवते जून है, शहीद जून है, धर्मराज जून है, जमदूत जून है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे जिन्ने बड़े बड़े जूना च ने। देवता जून है बहुत उच्ची है, पर मुड़ के मानस जन्म मिलेगा, भगती करनगे गुरु वाले बन के, भगती करके फिर नाम जप के आख आख के, होर कोई चैनल ही नहीं, क्योंकि मार लिख दे कर आखण तेरा नाम। हुण सारी बाणी च कदी फेथ आया बाबे दे उत्ते भी असीं बाणी आखी जांदे, बाणी आखी आखो जी सदके ओदे नाल असीं आ बाणी आख रहे हैं, असीं कोई विष्णु पता नहीं आख रहे। बाणी नरोल बाणी सामने, बाणी आखोगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ बार-बार पढ़ोगे ਤਾਂ समझो। लेकिन यह भी कभी किसी मेजरिंग स्टिक ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ देख ते लिए भी करना किदां। इस करके शब्द दो ने, तरीके दो शब्द ने सारी बाणी। एक शब्द ज्ञान देणगे, एक शब्द सानू तारेगा, ਉਹ जपण वाला शब्द है। सारे शब्दां नू हार्ड एंड फास्ट लाइन्स ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ देखी है भी ਜਿਹੜਾ सारा वाला शब्द गा रहे हैं ये ज्ञान देगा। सारी बाणी च ज्ञान कला है और परमेश्वर के नाम च पारस कला है। जिन्हें तारना है वो सब परमेश्वर के नाम ना तरना, उन्होंने फिर जीवन असी आख आख के तरना है। कर मिला आखण तेरा नाम, जित लगे तरना होर नहीं था, कर में मिला जे को डूबे फिर हो वैसा, जे को डूबे फिर हो वैसा, नानक साचा सर्व दतार। एंड आ गया, उस तो बाद डिजिट आ गए। 4 लाइनां इकट्ठियां होने शब्द दियां सी, 4 लाइनां इकट्ठियां पढ़ांगे। जिथों शब्द शुरू हुंदा है और रहाओ तो पहलियां लाइनां हुंदियां, उन्हां दा भाव अर्थ आण के रहाओ च समा जाना है। रहाओ की चीज़ है? रहाओ शब्द दा जिद्दां पहिए दा एक्सल हुंदा, इदां शब्द दे पहिए दा एक्सल है। रहाओ जिस्ट है, रहाओ सेंट्रल आइडिया है, रहाओ हैडिंग है शब्द का, जिहदे लई शब्द लिखिया गया। गुरुआं नूं रहाओ पहला आउंदा सी, लै फड़ रहाओ भाई, उतों बाद सारा शब्द उस रहाओ दे दुआले आउंदा। ये सारियां शब्दां दी ते भगतां दी महलियां दी अंतर है, और किसी सिख नूं शब्द नहीं आए। पट्टां दी बाणी है, उन्हां दी छंद है, और कई कुछ है, कविता सारियां किथे। कोई गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ोगे किसी को शब्द नहीं आया सवाए गुरु महलिया तो, उस बाद भगता नहीं आया। और फिर जहां फिर किनू शब्द आए है, उस युग पुरुष साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं शब्द आया है। रेमा ने ऐसो कर सन्यासा, सारे सुंदर गुटके च जाके पढ़ो। किसी सिखां दी बाणी च कोई शब्द नहीं लभोगे, किते शब्द नहीं कुछ, और किसी युग च शब्द नहीं आया। जाओ पहले युगां च कोई शब्द कढ़ के दस। भगत होए ने सारे होए, लेकिन कल युग च एडी मेहर है भी इन्ने शब्द साडे कोल गुरुआं नूं शब्द आए, मालियां नूं, भगतां नूं, जां फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं युग पुरुष नूं आए। और उन्होंने अपना सारे कलमबंद कीते है, वो तुसीं पढ़ सकते हो। और उन्होंने अपने शब्द विच भी पाए। एडी गरीबी रखी क्योंकि किसी होर मैनीफेस्टो लिए आए सी, किसी होर काम लई दुनिया च आए सी। इस करके उन्होंने दे शब्द मिलणगे, बाकी किते कोई शब्द नहीं मिलेगा। तां इस इन्हां शब्दां दी वडियाई आ। और ये सारे शब्द ही भगतां नूं भी जिहड़ी आए, भी गुरमुखी लिपि च आए। कबीर साहब वर्गे, बनारस शहर वर्गे एडे वड्डे भगत, हुण दुनिया जिहड़ी विचार कर रही है सोचती है भी कबीर साहब ने धद्दा किद्दां लिख दिता। साडी पंजाबी लिपि दा बनारस दी रहण वाला धद्दा उर्दे अर्ध उर्द नवेरा अर्ध छाड़ जाओ उर्द धद्दा ओहदी 35 ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟਿਪ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥੰਮ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਇਸੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਹੈ 661 662 ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। जियो तपत है, जियो तपत है, बारो बार तपे तपे खपै, बहुत बेकार बारो बार तपे तपे खपै, बहुत बेकार जियो तपत है। जैतने बाणी विसरे जाए, जैतने वाणी विसरे जाए, ज्यों पक्का पक्का ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, जियो तपत है, बारो बार तपे तपे खपै, बहुत बेकार है। जैतने बाणी विसरे जाए, जैतने बाणी विसरे जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, बहुता बोलन बहुता बहुता बोलन, चखण होए वेण बोले, जाने सब सोए रहाओ, बहुता बोलन चखण होए, वेण बोले, जाना सब सोए रहाओ, बहुता बोलन जिन्ने कान कीते अखी नाग, जिन्ने जेहवा दीती बोले तात, जिन्ने मान राखिया अग्नि पाए,
ਵਾਜੈ ਪਾਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਿਚਖਣ ਹੋਏ ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ ਰਹੋ ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪਰੀਤੇ ਸੁਆਦ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪਰੀਤੇ ਸੁਆਦ ਇਹ ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ ਤੇ ਦਰ ਗਏ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਦਰ ਗਏ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਹ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾ ਪਾਰ ਇਹ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਹ ਕਰ ਮੇ ਮਿਲੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ 31 ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ ਚਿਕਰ ਤੂੰ ਜੀਵ ਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਿਆ ਹੈ ਔਰ 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਤੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਜਿਸਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਣਾ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਉ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਦਾ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰਕਿਓ।
गुरु नानक दे गीत और शब्द हद्दां ही टप गए, जिन्हों समझना बड़ा मुश्किल है। और सारे गुरुआं नूं बाकियां नूं चाह नहीं सी भी गुरु बाकियां ने जिन्ना ज्ञान दिता भी गुरु नानक दे उत्तों दी ज्ञान करन, लेकिन गुरु नानक दा ज्ञान ही एडा मुश्किल सी। गुरुआं दे बाकी शब्द गुरु नानक दे शब्द दी एलैबोरेशन होएगी, ਉਹਨੂੰ क्लीयर किया होएगा। इस करके असीं गां इस शब्द नूं उन्हां दे शब्दां नाल, भगतां दे शब्दां नाल जिहड़े विच एडे डूंघे वैण है, ਉਹਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ उन्नियां सी विचारिए। तो इथों शब्द शुरू होंदा है, जियो तपत है बारो बार, ये तपे तपे खपे ये बहुत बेकार। बहुत तपदा है गुरु महाराज आप ही अपने शब्द दिंदे, दो शब्द कट्ठे दिंदा गुरु नानक। भी की गल है, मैनूं स्वाद क्यों नहीं आउंदा नाम जपण? कहंदे इहदे च इन्ने स्वाद है, इन्ना फायदेमंद चीज़ है, मैं तो अगे नालों भी सगों सड़ रहा, मेरा तो कुछ नहीं सरिया। ये पहली अवस्था है जिहदे लई महाराज इत्थों शब्द शुरू करदे, डोलना जिहड़ा है तू हली जपण दे रास्ते ते, जपण तो बाद ध्यान दा रास्ता है। अंदर तेरा थोड़ा थोड़ा मन डकना शुरू हो जाता, ते तेरा मन हली बहुत अंदर बाहर जाता, तप रहा जियो। तू सिमरन की अवस्था तक पहुंचना। ध्यान तो बाद जदों ध्यान लग जाता है फिर सिमरन बन जाता, और बहुत स्वाद है। तुसीं रोज़ सुखमनी साहब के पाठ च ਉਹਦੇ फायदे पढ़ते हो, प्रभ के सिमरन गर्भ ना। पर सिमरन की तीसरी अवस्था है, पहली जपण की अवस्था, मूँह दे नाल नाम आखण दी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ठंड नहीं पैनी। इस करके महाराज दो शब्द बीड़ दे विच बाबे दी दे गुरु नानक पातशाह दे शब्द कट्ठे आ रहे हैं। क्यों सिमरी सिमरिया नहीं गया, क्यों सिमरी सिमरिया नहीं गया। अगली लाइन आनी है जी इस बाबे ने इत्थे लिखी है, तपे तपे हियाओ जीड़ा बिलला, तपे हियाओ जीड़ा बिलला, जीड़ा बिलला जीड़ा बिल। शब्द जिहड़ा असीं पढ़ रहे हैं सारा तुहाडे हत्थां च है, जिहदी असीं हुण खोलण लगे हो तुहाडे हत्थ च नहीं होगा। वो ਸਰੋਤੇ अपने ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ अपने ज्ञान की कुंडी और शब्द नूं समझण की कोशिश करो। इस लिखे वाल नहीं ध्यान देना। क्यों सिमरी सिमरिया नहीं गया। हर एक दा जी करदा मैनूं स्वाद आवे जपण च और मैं सिमरन की अवस्था तक पहुंच जा। बाबा कहदा हाले नहीं पहुंचेगा तू। क्यों सिमरी सिमरिया नहीं गया, क्यों सिमरी सिमरिया नहीं गया। तपे हयाओ जीड़ा बिलला, तपे हयाओ जीड़ा बिलला। महाराज लाहौर दी तुक देंदे कहदे तू अपने मन दे हुक्म मनदा, अरे तू मन दे आखे ज्यादा लगदा, शब्द दे आखे ते घट रखदा। तो लाहौर दी तुक देंदे और तू बड़ी चतराई हली करदा। हिकमते हुक्मे ना पाया जा, हिकमते हुक्मे ना पाया। और शब्द का हुक्म मन, शब्द जो कहता है गुरु दा पर अकाल पुरख दा ओदा हुक्म मन, और ते अपने मन दे हुक्म छड़ दे। तेरे अंदर हली तेरा मन ज्यादा हुक्म करदा ओदे मगर, क्योंकि वो सौखे काम है, उन्हें तेन ज्यादा स्वाद आउंदा। पर ये मुश्किल काम जिहड़ा आखण औखा साचा ना हो, ये चली तेन स्वाद नहीं आउणा। महाराज लाहौर दी तुक दिंदे है, हिकमते हुक्मे ना पाया जा, हिकमते हुक्मे ना पाया। क्यों कर साच मिलो मेरी माँ, क्यों कर साच मिलो मेरी माँ। क्यों सिमरी क्यों सिमरी क्यों सिमरी सिमरिया। अगे बाबा गुरु महाराज अकाल पुरख मेहर होए बाबे दे राही एक होर शब्द गां भेजिया जिहड़ा कट्ठे गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ च आउंदे। अगला शब्द महाराज ने फिर लाया जो ज्ञान काल पुरख दा आया,
कैसा ज्ञान महाराज दे रहे अगले शब्द च, नदर करे तां सिमरिया जा, नदर करे तां सिमरिया। वो जरूर करेगा नदर, ये नहीं पियो नदर नहीं करेगा, नहीं। क्यों? जे को डूबे फिर होवे सा, नानक साचा सर्वदा, नानक साचा सर्व। और वो दूर नहीं है। दसम पातशाह कहते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे आपंगं पपुते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूप, दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे, नानक साचा सर्वदा। नदर करे तां सिमरिया जा, नदर करे तां सिमरिया। पहला शब्द क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जा, तपे हिया जियड़ा बिलला, हे जियो तपत है बारो बार, जियो तपत है बारो बार, तपे तपे खपे बहुत बेकार, तपे तपे खपे बहुत। किस तरह? जिदा गुरु अर्जन पातशाह कहते है, मेरा मन लोचे गुर दर्शन, मेरा मन लोचे गुर दर्शन, बिलप करे बिलप बिलप करे चातरिकती। की उते ठंड पै गई है? पहला शब्द जिससे शुरू होता। गुरु अर्जन पातशाह दी भी यह प्रॉब्लम है। वो कहता मैं जपी जाना 20 आंगू तपी जाना, पर महाराज कहते मेरा मन लोचे गुर दर्शन, बिलप करे चातरिकती, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, त्रिखा आ शब्द गाइड लाइन है 82 ली, 82 औसरा नटा। पहला शांति नहीं होनी। गुरु अर्जन पातशाह दादे पर असी भी आंगू बोलने नहीं हटना, जपना नहीं हटना। इस करके सब कुछ आएगी, पर त्रिखा न उतरे शांत नया, ए शांत न आवे शांत न, ए शांत न आवे शांत न, ए जियो तपत है भारो, ए जियो तपत है भारो, ए तपे तपे खपे ए बहुत बेकार, तपे तपे खपे ए बहुत। क्यों? तेनू की चीज विसर गई है। जेड़ा जेड़ा जिन्हें सब कुछ करना है, तो ओदी नॉमनक्लेचर, ओदा तुसी मतलब होर समझ लिया है। बाबे बेले दी बाणी है, बाबे बेले दा शब्द है, और विच बाणी दा लफ्ज दे रहे। कि जिस शरीर नूं बाणी विसर जाती है, वो कैंसर का रोगी बन जाता, पक्का रोगी हुंदा, जिहड़ा रोग हट ना सके, जिन्होंने अजकल कैंसर कहते हैं। वो कैंसर होया उन्हां लोकां नूं जिहड़े कि नाम नहीं जपदे, वो बीमारी हट नहीं सकती। सब दिखिया का भाव गुरमुखे सुनना साचा। बाबा कहना मैं भी पिछे बैठ के संगत दे बार बार फिर नाम नूं आखदा, नानक आखण वेरा। बाबा नानक तन बाणी वेसर जाए, जय तने बाणी वेसर जाए, ज्यों पक्का पक्का पक्का, ज्यों पक्का रोगी बेल लाए। हुण शब्द चो इहदा जवाब लभना है। बाणी की है? मारे कहंदा पक्का रोगी किदां ठीक होएगा? कर में मिले
आखण तेरा नाम। बाबा बाबा कभी नहीं दो चीज़ां दे सकदा नहीं शब्द, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। बाबा कभी नहीं कह सकता भी तू तरेगा तो नाम ना चलेगा तो इत्थे बाणी का मतलब हो जाए। नहीं, तरेगा बाणी का मतलब सारी बाणी नूं गुरमत लिखिया है। मत गुरमत, मत गुरमत, सारी बाणी गुरु की मत है, ज्ञान है सारा। असी समझिए ओदा एडा वड्डा दिसिया भी आ जुगाद वे सारे को मत गुरमत ही हर पर भजया। तन बाणी विसर जाए, जय तने बाणी विसर जाए। रोज रह रस शब्द पढ़ते हैं और उदी रहावदी तो कर। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। रहावदी तो और बाबे दा शब्द ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਲੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਵਿਸਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਏ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਤੁਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਾਂ। सो क्यों विसरै मेरी माए, क्योंकि वो साचा साहब, झूठा साहब दुनिया ने कहना सी जी उसका नाम सच्चा है। साचा साहब क्यों सच्चा है, क्योंकि उसका नाम सच्चा है। साहब का सानू अली नहीं पता, सानू नाम का पता। इस करके साचे साहब नूं साचा साहब तां कहने हैं क्योंकि उसका नाम सच्चा है। ओ ना विसर जाए मैनू, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। साचे उसका साचा साहिब है, सच्चे नाम तो बगैर मिलना नहीं। इस करके कर में मिले आखण तेरा नाम। बाणी ना पाई सके जुग बाणी आखते रहो, बाणी तुहानू लोह देगी। आ लोरियां दे दे के बाबे ने शब्द इन्ने तदे लिखे है भी रस गाओ, और जिहड़ा इहदे विचों किसी मेयरिंग स्टिक ना गाओ, किसी बुद्धि फड़नी भी असी इलाज लभना भी साडा तप रहा है, सानू किदां स्वाद आए। बारी कहंदा तैनू हली स्वाद नहीं, तू ज्यादा टाइम बाणी नूं देना, नाम नूं घट देना। इस करके फिर टाइम ज्यादा देना है। जो बाबा शब्द सानू पूरने पा रहा है, असी वो काम करना। दुनिया तुरदी ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन असी बाबे दे इंस्ट्रक्शन तो बाहर नहीं जा सकते शब्द। इस करके महाराज कहंदे जय तन वाह विसर जाए। बाणी नहीं विसरनी। महाराज कहना सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचा। और शुरू शब्द इसू कर दे, आखां जीवा विसरे मर जाऊं, आखां जीवा विसरे मर जाऊं, आखां जीवा नाम नूं आखदा ते मैं जीना। बाबा नानक जीवा विसरे मर जाऊं, आखां जीवा विसरे मर जाऊं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, आखां जीवा विसरे मर जाऊं। और एक कम बड़ा औखा, बाणी नूं आख लेना सौखी गल है। आखण औखा साचा नाम, आखण औखा साचा नाम। गला शब्द ठेका लैंदा, कंट्रैक्ट करदा है अभ्यासी नाल भी जे तू औखा काम कर गया ना, जो जो भुख तेनू नाम जपण दी सारा दिन च लगी रही भी मैं किन्ना नाम जपां, तेरी जिंदगी दे दुख शब्द दा ठेका खत्म कर दे। मर जाओ आखां जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की लागे भूख, साचे नाम की लागे भूख, पुत भूखे खाए चलिए धूख।
तेरी जिंदगी दे दुख खा जाएगा उपर के शब्द जिहड़ा उत भूखे कलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहेब साचे नाए सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहेब साचे नाए साचे नाम की लागे भूख साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख आखा जीवा विसरे मर जाओ आखा जीवा विसरे मर जाओ आखण औखा साचा नाओ सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहेब साचे जैतन बाणी विसरे जाए जैतन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए। आओ इस धार नूं जरा पिंडां तक भी पहुंचाइए और पिंडां दीयां धारनां च सिद्धे जिहड़े लोग जोटियां जगाउंदे आ तो ओदे ते आप बाबे दा शब्द पढ़िए जैतन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए रोगी विल लाए जैतन बाणी विसर ज्यों पक्का रोगी विल लाए पक्का रोगी विल लाए बाणी ज्यों पक्का रोगी विल लाए पक्का रोगी विल लाए पक्का रोगी विल लाए जियो तपत है बारो बा तप तप खपे बहुत बे फिर जियो तपत है बारो बा तप तप खपे बहुत बे फिर तप तप खपे बहुत बे जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल पक्का रोगी विल लाए जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए पक्का रोगी विल लाए आखा जीवा विसरे मर जाओ आखा जीवा विसरे मर जा आखन औखा साचा साचा आखन साचा नाओ सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहेब साचे। आते गुरु महाराज ने गुरु नानक ना बाहां चक के अपने शब्द का तोड़ा दिता मैं कोई दुनिया च होर काम नहीं करना नाम जपण का एडा फायदा है तो महाराज ने अपना वो शब्द अखीर ते दिता और कहा जाप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुरु नानक अपना गुरु दसन लगा मेरा गुरु बंदा नहीं सी गोर परमेश्वर नानक पे कादे ना भेटिया साचे सब दे नबे। और गुरु महाराज आप लिखते पे मैं अपना शब्द ऐदा जपिया अपनी कलम तो लिख दे एक आख आख शब्द पाख अर्ध उरद दिन रात एक आख आख शब्द पाख अर्ध उरद दिन
सत्य साच सरी निवास आदि पुरख सदा तुरी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सदा तुरी वाहे गुरु वाहे